Good morning, everyone. Today we're going to start a new topic, and that is motivation. It is a topic which is after supervision. Motivation is that process by which employees are inspired to make them feel need. See, there are different types of motivation. I have told you earlier also that motivation may be positive and it may be also negative, and it has different characteristics. The first is motivation is psychological concept, means it relates to the mental status of human man, and the whole man is inspired and not only a part of it. Means when you motivate any person or you motivate any single individual, then the whole man will inspired. And it is not that only a mind can inspire or something like that. The whole man is inspired and he is ready to work with his willingness. Motivation is an infinite process, or you can also say that motivation is a never ending process which will never ends throughout the life of the organization. Motivation may be financial and motivation may be non financial, means every time you do not have to make expenses for the motivation. You can also appraise any employee's work so that he can motivate it and do the best work for the organization to achieve their goals. Motivation is the base of any work, or we can also say that for doing any work or for doing every work, motivation creates a base of it. Motivation also gives work satisfaction. See, when any manager motivate any individual, so he also gets satisfied with his work. Without motivation, our life is really seems to be like boring, and it does not create any kind of interest in any work. देखिए, मोटिवेशन के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि अभिप्रेरणा कहते हैं इसे, और इससे पूरा ही व्यक्ति इंस्पायर हो जाता है और वो अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है। इससे ऐसा नहीं कि केवल दिमाग ही मोटिवेट होता है और बाकी व्यक्ति जो है वो मोटिवेट नहीं होता, पूरा व्यक्ति मोटिवेट होता है और वो उस काम को अच्छी तरीके से करता है। उसके लिए मोटिवेशन ऐसी प्रोसेस होती है जो इनफाइनाइट प्रोसेस होती है, मतलब जो कभी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ टाइम होती है उसमें वो ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, पूरे लाइफ टाइम में वो प्रोसेस चलती रहती है। मोटिवेशन एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। मोटिवेशन फाइनेंशियल भी होते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मोटिवेशन में आप एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल में ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के काम की सराहना कर सकते हैं, ठीक है, उसे कह सकते हैं कि आपने जो काम किया वो बहुत ही अच्छा है। इससे भी व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेशन काम करने का बेस होता है। हर काम को करने के लिए जो बेस होता है वो मोटिवेशन ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिना मोटिवेशन के काम करना इज जस्ट लाइक दैट व्हेन एनी पर्सन इज नॉट विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब जब ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो ऐसा लगता है। अगर आप व्यक्ति को मोटिवेट करेंगे तो वो खुशी खुशी काम करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। मोटिवेशन से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, मीन जो व्यक्ति काम कर रहा है वो काफ़ी सेटिस्फाई हो जाता है और उसे भी खुशी होती है कि उसने जो काम करा वो बिल्कुल ही सही है। देखिए, मोटिवेशन, वाई मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट, सो फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज man, money, material, machines and method. So when you motivate any individual, he can utilize all your resources in an efficient manner or in a good manner. Creation of interest in the work, मैंने जैसा अभी कहा कि every individual गेट्स इंटरेस्ट इन द वर्क व्हेन यू मोटिवेट एनीबडी। जब आप व्यक्ति को मोटिवेट करेंगे वो खुशी खुशी काम करेगा और रुचि लेके काम करेगा। अदरवाइज तो ऐसा लगेगा बिना इच्छा के काम करने के जैसा हो जाता है, व्हेन द पर्सन इज नॉट विलिंग टू डू अ वर्क। सो मोटिवेशन क्रिएट्स द इंटरेस्ट एज वेल एज इट वाज आल्सो अ बेस ऑफ वर्क टू अचीव द डिसाइडेड गोल्स। व्हेन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिसाइडेड, then it is very necessary or important for us to motivate the individual so he can get the goals on time, to increase the will or moral of employees. With the help of motivation, moral of the employees will increased and it will also create a good human relation between various employees. जो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं उनके जो बीच में जो रिलेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और उनकी जो विल पावर होती है या जो उनके काम करने की जो एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ता है और उन्हें खुशी भी होती है। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मोटिवेशन के बारे में। यू कैन ऑल्सो रीड द डिटेल्स फ्रॉम योर बुक एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। सी, देखिए, मैंने आपको अभी कहा कि
जो मोटिवेशन होते हैं वो मॉनिटरी भी होते हैं और नॉन मॉनिटरी भी होते हैं, मतलब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में जैसे आप सेकंड पॉइंट कर सकते हैं बोनस, रेंट, परक्यूसाइड्स रेंट, लोन फैसिलिटी, सैलरी फॉर ओवर टाइम, ये सब मॉनिटरी इंसेंटिव्स होते हैं। मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू मनी इन विच द फर्म हैव टू स्पेंड मनी इज नोन एज मॉनिटरी इंसेंटिव। ऐसी चीज़ें जहाँ आप सफिशेंट सैलरी दे सकते हैं, एक अच्छी हैंडसम सैलरी देंगे तो व्यक्ति खुश होगा और आपके यहाँ काम करेगा। ये सारे जो खर्चे बता रखे हैं उनने, ये सारे जो इंसेंटिव ये होते हैं, ये मोटिवेशन के टाइप से और ये मॉनिटरी के टाइप से। मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी खर्चा होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरी इंसेंटिव्स देता है। वेल ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स, देन that is first is job security or ambition of high post, or you can also say promotion, participation, free from fear, justified behavior, welfare schemes। ये सब इजी पॉइंट है। देखिए एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती है। अगर बिहेवियर अच्छा है तो भी व्यक्ति मोटिवेट होगा, जैसे उनके बॉस उनसे अच्छे से बात करें, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने अभी बोला था कि उनके काम को प्रेस किया जाए, किसी के भी काम की अगर आप सराहना करेंगे तो वो खुश होता है और काम अच्छी तरह से करता है। फिर है जॉब सिक्योरिटी, कम से कम एम्प्लॉय में ये बात तो होनी चाहिए कि जो उनकी जॉब है वो कैसी है, सिक्योर्ड है। फिर प्रमोशंस, तो ये सब थे, ये नॉन मॉनिटरी के पार्ट थे, ठीक है। और ये जो रहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अपनाती है बिकॉज उनका जो खर्चा है, जो फाइनेंशियल बर्डन है वो ऑर्गेनाइजेशन पे कम से कम होता है, इसलिए जो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स है वो ज़्यादा अपनाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू monetary incentives, because monetary incentives will increase the burden of financial मैनेजमेंट। जो फाइनेंस रहता है उसको मैनेज करने में तकलीफ आती है, और जो इट विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ फाइनेंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। पैसे का जो बर्डन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कोई एक दो एम्प्लॉय से नहीं चलती, कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और सभी को अगर आप मॉनिटरी इंसेंटिव्स देंगे तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये थे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। Now we will start with our new topic, and that is leadership. To motivate the subordinate is leadership. See, in leadership there is a one person who is called leader. Our national leader nowadays very prevailing in India is Shriman Narendra Modi ji, our Prime Minister, and he is also presents a good example of a great leader, ठीक है। लीडरशिप के बारे में देखिए क्या बोला गया है। लीडर वो व्यक्ति होता है जो फॉलोवर्स को मोटिवेट करता है, ठीक है, या जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसके नीचे ओहदे वाले व्यक्ति है या जो उसके सहयोगी हैं, वो जो सपोर्टर्स हैं, उन्हें वो मोटिवेट करता है और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। सो फॉर एवरी लीडरशिप स्टाइल और फॉर एवरी लीडर देर इज़ ए एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोवर इज़ वेरी नेसेसरी। विदाउट फॉलोवर्स अ पर्सन कैन नॉट बी अ लीडर। कोई भी व्यक्ति लीडर तब कहलाएगा जब वो उसके फॉलोवर्स होंगे। Leadership is a continuous activity, means it is an activity which can be run continuously throughout the life of a leader, and you cannot run away from your liabilities, right? Means if you are leading a mob, or when you are leading your followers, then you cannot run away from your conduct. The conduct of leadership is also an ideal conduct, means it is different from another. There is a similarity of objective between the leaders and their followers, and it is an effective process. The followers get motivated and they will follow all the instructions given by leader. And मैं आपको बता देती हूँ लीडरशिप में ये ज़रूरी होता है कि उसके फॉलोवर्स हों, और ये कंटिन्यूस एक्टिविटी। अगर आप किसी भी व्यक्ति को लीड कर रहे हैं या किसी भी मॉब को, भीड़ को, या अपने फॉलोवर्स को अगर लीड कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली उन्हें लीड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर आपने लीड करा और उसके बाद आप उस जगह से ही गायब हो गए जहाँ कोई सा आंदोलन वगैरह चल रहा है, ठीक है। फिर ये एक आइडल कंडक्ट होता है, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जो एम रहते हैं, वो सिमिलर होते हैं लीडर के भी और फॉलोवर के भी। ऐसा नहीं लीडर कुछ और सोच रहा है, फॉलोवर कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है। और ये एक इफेक्टिव प्रोसेस है। इसमें जो लीडर्स जो रहते हैं वो मोटिवेट करते हैं, वो इंस्पायर करते हैं अपने फॉलोवर्स को। उसके बाद है different importance or need or functions of leader. See, he is an inspiration power. They increase the morale of the subordinate. He increase the team spirit, supports and coordinate with the employees.
फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिसिप्लिन। देखिए सारे पॉइंट्स जो है वो इजी हैं, आप इसके डिफरेंस आप इसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ सकते हैं बुक में। सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट और लीडरशिप एक अलग अलग एस्पेक्ट है। देखिए जो लीडर रहते हैं उनके फॉलोवर्स होते हैं, और जो मैनेजमेंट में जो मैनेजर रहता है वो बॉस रहता है, और उसके अंडर जो काम करने वाले हैं वो एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में मैनेजर जो रहता है वो ऑर्डर देता है, ठीक है, और लीडरशिप में जो लीडर रहता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है। जो मैनेजर है वो सभी के जो एम है वो ऑलरेडी डिसाइड कर देता, वर्क डिसाइड कर देता है, पर लीडर ऐसा नहीं कर सकता है। वो सभी से प्रॉब्लम्स डिस्कस भी करता है और उसके बाद ही किसी चीज़ को डिसाइड करता है। तो और रिलेशनशिप भी अलग होती है, यहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप होती है मैनेजमेंट में, और लीडरशिप में जो है वो रिलेशनशिप अलग टाइप की होती है। तो इनके जो स्कोप, फंक्शन, स्टेबिलिटी है वो हर चीज़ अलग अलग है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक मैनेजर और एक लीडर में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा, सो व्हाट मस्ट बी द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। लीडर, एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो मुझे इसमें सेकंड पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, दैट ही मस्ट बी मैच्योर्ड एंड ही हैज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, knowledge and decision power. With the good communication ability, he must speak truth, right? So these are the different kinds of ability which I want to see in any leader, that he must have good communication skills, or he can able to impress any person in first meeting only. He must speak truth and have the honesty in his character, and he must have the good decision power as well as knowledge with self-confidencing. And at the last, the leaders must have his mental maturity, means he must be matured enough to understanding different kinds of situations. So only after that only he can be a good leader, otherwise he cannot be a good leader if he is not matured, right? So this is the different qualities of a leader which I want to see in any leader. This is the topic which is also present in the last year's book, and it is of class 11. What is communication? When two or more than two persons talk together or share some ideas is known as communication. The different elements of communication is sender, receiver, message, signs, communication channel and feedback. देखिए कम्युनिकेशन में मैंने बोला है कि जब दो लोग आपस में किसी थॉट को एक्सचेंज करते हैं तो ऐसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। इसमें एक व्यक्ति वो होता है जो सेंडर होता है, मतलब जो मैसेज को बोलेगा, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, सेंडर। दूसरा व्यक्ति क्या हो जाता है, जिसको मैसेज मिलेगा, वो रिसीवर। मैसेज वो है जो सेंडर ने बोला। साइन मैसेज का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, अब आपने बात जो करी है वो किस चैनल और किस मीडियम के थ्रू करी है। आपने फ़ोन के थ्रू करी है, टेलीविज़न के थ्रू करी है, रेडियो के थ्रू आप किसी की बात सुन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें चैनल्स में आती है कि मीन्स व्हेन यू आर सेंडिंग योर थॉट्स, देन व्हाट इज़ द मीडियम और व्हाट इज़ द चैनल ऑफ दैट कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट इज फीडबैक। व्हेन the receiver replies to the sender, then that is known as feedback. Why communication is important? Communication is very important in the present era. A good communication increases the managerial efficiency. It get the support by explanation. It is the base of leadership, coordination and establish good relations, as well as it is very easy for a manager to take the quick decision and their implementation. देखिए अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैनेजर अच्छे से बातचीत करेगा तो जो उसकी एफिशिएंसी है, मतलब काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, ठीक है। वो किसी भी ऑपरेशन को, मतलब किसी भी वर्क को एफिशिएंटली कर पाएगा और उसको सपोर्ट भी मिलेगा, वो अच्छी तरह से लीड कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, साथ ही साथ जो उसे कोऑर्डिनेशन है वो भी मिलेगा। और जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉस एंड द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो गेट स्ट्रॉन्गर। सो a manager also able to take quick decision and also able to implement that decisions. वैसे कम्युनिकेशन को मैंने हमेशा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं, और जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो सेंडर होता है, और जिसे मैसेज हम बोलते हैं वो रिसीवर होता है, ठीक है। इसी के बारे में है। और व्हाट आर द बैरियर्स और ऑब्स्टेकल्स और ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनसे रुकावटें आती हैं किसी से बातचीत करने में। सबसे पहला तो ये है फॉल्टी एम, मुझे वो बहुत सही लगता है, और उसमें बोला गया है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर या लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर। व्हेन द टू पर्सन डू नॉट हैव देयर सेम लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग,
then it is a very common barrier which we will face when we go outside India. जब आप इंडिया के बाहर जाएंगे और दो लोगों की लैंग्वेज कॉमन नहीं होती तो वो बिल्कुल बातचीत नहीं कर पाते हैं, ठीक है. फिर स्टेटस रिलेशन, पीपल कैन नॉट जनरली able to speak in front of their boss. Lack of time, when you do not have time then you do not communicate with other people and it is a very common barrier. The last is distance or listening. When you have any problem in listening or you will be unable to hear the sender's message due to external sound and all, then it is also a barrier of communication. And when the between two persons the distance is more, then also we cannot able to listen what the other is saying. So these are the certain kinds of barrier. मतलब जब आप बातचीत करते हैं तो क्या क्या रुकावटें आती हैं. जैसे मान लीजिए कि दो लोग बात कर रहे हैं और बाहर से आवाज़ आ रही है. अब किसी भी चीज़ की आवाज़ आए तो जो व्यक्ति है वो सामने वाले की बात नहीं सुन पाएगा. कभी कभार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, फॉर्मल स्ट्रक्चर के कारण भी हम बातचीत नहीं सुन पाते हैं. उसके बाद है स्टेटस रिलेशन, या टाइम की कमी है, या आपको सुनाई नहीं दिया, या दूरी ज़्यादा है. दो लोग जब बहुत दूर दूर खड़े होंगे तो भी वो आपस में बात नहीं कर पाएंगे. तो ये सब थे बैरियर्स. मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनसे रुकावटें आती हैं और व्यक्ति सामने वाले की बात नहीं सुन पाता है. एंड इन दैट सिचुएशन दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन एंड यू कैन नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द पर्सन व्हेन यू हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम. अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप सामने वाले से कम्युनिकेट नहीं कर पाते. And the last is types of communication. What is formal communication and informal communication? When you sit in a organization, then that type of communication is known as formal communication, which is normally done in written or oral form, or when it represents formal relationship between the bosses and employees. And informal communication is when two friends sit together and talk together and in an uncertain way, right? There the intensity of transfer of information is very fast, and in this there is a particular relations between them, and various informations are shared without any hesitation. Whereas in formal communication there is a lots of hesitation, because generally the employees cannot able to speak with their boss because of certain rules, regulations and in a formal way. देखिए, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस में होता है और वो रिटर्न होता है और ओरल होता है. उसमें जो रिलेशनशिप होती है वो बॉस और एम्प्लॉय वाली होती है और एक कुछ निश्चित तरीका होता है, उस हिसाब से ही बातचीत करी जाती है. उसकी तुलना में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे आप दोस्तों के साथ बैठे हैं तो कोई वे नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन जल्दी आप एक दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, जैसे पर्सनल भी हो जाती है, प्रोफेशनल भी हो जाती है. उसमें जो इंडिविजुअल के जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, ठीक है. तो ये था फॉर्मल और इनफॉर्मल. and this is the completion of chapter 7, and if you are having any doubts then you can ask me later on my WhatsApp. Thank you.